Hello everyone, I Dilshad Begum from English Department, Karim City College. Welcome you all to the online classes of English Core. As in the previous video, we have discussed about the writing skill and its short composition. So in the last video, if you have not watched yet, so please look at this. We have already discussed about the notice, that what is notice and how do we write a notice, what is the format of a notice in fact. So after that there is a second short composition, that is invitation. Today we are going to know about the invitation, what is invitation, what types of the invitation are there, and how do we write it. So I think when the words invitation comes to you, you are very clear about it, to invite someone, or we got some sort of invitation from the other person. So maybe it will be more easy for you all. So look at this. What is invitation? Definitely to invite someone for an occasion. We use the written form of invitation whenever we invite someone, or verbally sometimes अगर आपके साथ कोई कैजुअल फ्रेंड्स है, सो वी डू इट, बट इन अ प्रॉपर वे अगर हम बात करें, सो टू इनवाइट समवन फॉर एन occasion we use the written form of invitation are generally printed cards through which we invite our guests on some auspicious occasion like wedding, birthday, and a wedding anniversary, maybe housewarming, grah pravesh, to whom we say the inauguration of a shop या factory. किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है, इनाग्रेट करते हैं हम, तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी राइट एन इन्विटेशन, और टू स्पेसिफिक पर्सनालिटी, कोई सी इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन के लिए भी हम इन्विटेशन का यूज़ करते हैं. सो दिस इज व्हाट द इन्विटेशन आर. So now I'll tell you what are the types of invitations. So there are two types of invitation. The first one is formal invitation and the second one is informal invitation. फॉर्मल इन्विटेशन भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, और इसमें डिनाइन भी होते हैं और एक्सेप्टेंस भी होते हैं. सपोज समवन हैज़ इन्वाइटेड यू फॉर अ पार्टी, तो अगर आपको जाना है तो मे बी यू एक्सेप्ट इट or you give a reply of that particular invitation. If you don't want to go, if there is any reason, suppose it usually happens for like a very important sort of the person are there to whom I invited, if they are unable to come, they will send a reply to me. So वो भी हम जानेंगे how do we write a reply, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन कैसे लिखते हैं. सो वन बाय वन वी विल नो. But before going through the format and an example of invitation, of formal invitation in fact, so I'll tell you what are the things, what are the points are there to whom we have to keep it in our mind. किन किन चीज़ों को हमें याद ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, and what are the points are there through which we will write a complete and affectionate invitation. Now look at the points to remember. Write in one single sentence. If you're giving it in a card, according to card, write it in a one single sentence. Then name of invitee is not important. Yes, name of the invitee. Why it's not so important? Because this invitation I have to give many people. Like you are inviting 10, 20, not the 10, more than 50, at least 100, 200. जिसको भी आप बड़े पैमाने में, अगर आप छोटे पैमाने में, जिस तरह से भी अपने आप को, अपने प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अगर इनवाइट करते हैं, किसी को इनविटेशन कार्ड देते हैं, तो आप उसके एनवेलप में जनरली उसका नाम लिखते हैं, नॉट इन दी कार्ड. तो हम यहाँ पे कार्ड की बात कर रहे हैं, तो कार्ड में इनवाइटी का नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. दो देयर नेम इज़ रिटेन ऑन द एनवेलप एंड यू आर इन्वाइटिंग समवन, तो एनवेलप के ऊपर आप जनरली नाम लिख के किसी को एड्रेस के साथ इन्वाइट कर देते हैं. देन वी हैव द मैटर शुड बी सेंटर अलाइंड इन केस ऑफ कार्ड. नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. Definitely you are inviting someone, so it will be in a simple present tense. It is written in third person. You are inviting someone, he or she is the third person of you, you are the second person or first person who is inviting it. So आप first person हो के आप third person को invite कर रहे हैं. So this is what it is written in third person.
Next, word limit is 50 words. There are the limitation of words which is of 50 words only. As in the earlier video I told you that the word limitation is of notice 50 marks. So the same things, क्योंकि जबकि हमारा मार्क्स भी सेम है 4 to 5 मार्क्स, उसकी कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, क्योंकि 1 मार्क्स उसमें भी फॉर्मेट में था, इसमें भी आपका 1 मार्क्स फॉर्मेट में है, 2 मार्क्स उसमें भी कंटेंट में था, इसमें भी है. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेम उसमें है एंड हेयर विल बी द सेम वन. So यहाँ भी it is written in third person. Words limitation is 50 words. And enclose in box. Definitely, as we do in the notice also, we will put a box. We will enclose it by a box to make it more effective. And this is the manner of writing it. So please don't forget to enclose the box. Sorry. Font of various lines may be different. Yes, फॉन्ट हो सकता है कुछ चीज़ें लाइन में ऐसी होंगी जो ज़्यादा अलग होगी, थोड़ा उसके फॉन्ट जो है थोड़े बड़े साइज़ के हो सकते हैं, किसी के फॉन्ट थोड़े छोटे साइज़ के हो सकते हैं. जिन चीज़ों को हमें ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है मे बी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होंगी, जिन चीज़ों को हाईलाइट उतनी नहीं करनी है तो मे बी उनके फॉन्ट थोड़ी छोटी होंगी. सो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि फॉन्ट ऑफ वेरियस लाइन्स मे बी डिफरेंट. Next, brief and precise. Yes, only important detail will be given there. So it will be very brief and precise. No other information and detailing will be there. Only specific lines will be added. Like जो खास बातें होंगी कि क्या प्रोग्राम होने वाला है, किसके थ्रू प्रोग्राम होने वाला है, किस जगह पे, क्या प्लेस है उसका, मीन्स ये सारी चीज़ों को मिलाकर ऑलरेडी आपका 51 हो जाता है ऑलमोस्ट. सो यू विल ट्राई कि आप कोशिश करेंगे कि ब्रीफ और प्रिसाइज में विद इन 50 वर्ड्स आपके वर्ड्स लिमिटेशंस के अंदर आपकी बातें ख़त्म हो जाए. नेक्स्ट, देयर इज़ अ लास्ट वन दैट इज़ नो पंक्चुएशन एट द एंड और ब्रेक ऑफ लाइन. व्हेन यू विल एंड योर लाइन, जब आपकी लाइन्स एंड हो जाएंगी तो देयर विल बी नो कॉमा, नो फुल इन द ब्लैंक्स, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, नो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, नथिंग विल बी देयर. सो आप कोशिश करेंगे कि आपके जो पंक्चुएशंस मार्क्स हैं वो लास्ट में ना हो. इट शुड नॉट इंक्लोज इट. सो दिस इज़ द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम लिखेंगे, फ्रेम करेंगे इनफैक्ट इन बातों को ध्यान में रख के, दैट हाउ डू वी राइट अ इन्विटेशन. सो नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट, कार्ड फॉर्म, कि ये कार्ड फॉर्म में कैसे होगा और किसके क्या फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें को हमें ऐड करनी है. पहले तो हमने ये जाना कि व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है व्हाइल आई एम राइटिंग इट. नाउ आई टेल यू कि हमें एग्जैक्ट क्या क्या लिखना है इन द इन्विटेशन लेटर. सो द फर्स्ट वन इज नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, whoever is inviting you, whoever is doing this program. सो उनका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है उनका अपने फैमिली पे, अपनी इस पे. सो द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन. या डेफिनेटली स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन विल बी देयर, लाइक सीक, जैसे कि बहुत सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, या फिर इट कैन बी कॉर्डियली इनवाइट और एल्स रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर benign presence. So these are the standard line जब हम invitation देते हैं किसी को, so we write it. Then the third one is occasion, यानी reason you have to give कि ये क्या occasion है, whether it is a housewarming, whether it's a wedding, anniversary, birthday party, whatever it is. And there will be date, day, time and place, venue. ठीक है, these are the things obviously you have to mention if you are inviting anyone at what date this date that program is going to be held, at what day it is. सपोज कि हमें यहाँ 19 को है, then it is on Monday, morning है, evening है, at what time it is, 5 o'clock, 11 o'clock, you have to mention the time also कि किस टाइम पे लोग आएंगे. if it is a birthday party, 5 o'clock, 6 o'clock, or else directly on 8 o'clock. एंड प्लेस एट वॉट, किसी ग्राउंड पे है, किसी हॉल पे है पार्टी, या फिर आप अपने रेसिडेंस में ही इस पार्टी को कर रहे हैं. सो दिस इज वॉट अबाउट द
venue is. Then at the 5 points, mention of special guest. सपोज अगर आपको किसी स्पेशल गेस्ट को मेंशन करना है, किसी वीआईपी है जिससे प्रोग्राम इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली एडेड, और एल्स नंबर 6 इज जब ये एंड हो जाता है एट द लेफ्ट साइड अगेन वी राइट RSVP. Do you know what is the meaning of RSVP? That is responses set cell was played. That is actually a French phrase जिसका मतलब शायद आप जानते होंगे. That is please respond. Okay, so this is what the RSVP is, and ठीक below the RSVP we write the address और contact number of organizer. जो भी ऑर्गेनाइजर होता है, जो भी ये प्रोग्राम को करता है, देयर वी राइट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजर विद द एड्रेस एंड देन पुट इट इन बॉक्स. डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे कहा था दैट यू हैव टू पुट दिस इन्विटेशन इन अ बॉक्स, सो प्लीज ट्राई टू पुट इट इन अ बॉक्स. फॉर लेटर फॉर्म फॉलो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर. ठीक है, जब हम किसी को किसी तरह का लेटर के फॉर्मेट पे होता है, फॉर लेटर फॉर्म फॉलो फॉर्मेट ऑफ जो पर्सनल जो हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, सेंडर एड्रेस होता है, डेट होता है, सब्जेक्ट होता है, रिसीवर एड्रेस होता है. सो वो सारी चीज़ें भी हम इस पर ऐड कर सकते हैं. मतलब ये उसी तरह का ऑलमोस्ट होगा. एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा जब आप दे सकते हैं, कैसे आप इन्विटेशन लिखेंगे. जब आपके एग्जाम में आएगा विच कंटेन 4 to 5 मार्क्स, सो आप उस 4 to 5 मार्क्स में जब आप इसको बना के लिखेंगे देन हाउ मच इट विल बी मोर अफेक्टिव कि एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स दे दे. सो ऑब्वियसली इट कैन बी पॉसिबल इफ़ यू आर राइटिंग इट इन अ प्रॉपर वे. जो अप्रोप्रिएट मैनर है इसका, आप उसके हिसाब से अगर इसको पुट करते हैं, सो आई डोंट थिंक कि पीपल विल कट योर मार्क्स. यू विल गेट स्मॉल नंबर ऑफ द मार्क्स, बहुत ही आपको कम मिलेगा. दैट्स नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ दैट इज इन योर माइंड. So writing skill is the only skill where you can score more and more marks. Means I can say कि if writing it, अगर आप सही फॉर्मेट के साथ हर कुछ सही आप लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं सही से, जो भी एग्जाम्स में आपकी शॉर्ट कंपोजिशन है, जो भी लेटर आते हैं, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं तो आई एम टेलिंग, आई एम डैम श्योर इन फैक्ट कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर से अपनी परसेंटेज को और बढ़ा सकते हैं. सो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो सकते हैं हमारे इन्विटेशन के. सीक द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आप बोल सकते हैं एज अर्लियर आई टोल्ड यू, कॉर्डियली इनवाइट, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस. सो ये सारी चीज़ें हैं. शायद आप वाइल यू विल राइट नोटिस इन्विटेशन, तो आई थिंक दैट टाइम आप इसको पुट कर सकते हो. दैट विल बी ओके, फाइन. नाउ आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. फॉर्मल इन्विटेशंस के क्या फॉर्मेट हो सकते हैं. नंबर 1 इज नेम ऑफ द होस्ट. स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे आई टोल्ड यू कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, date, time, venue of the event, purpose of invitations. So this is what about the all invitation is. So अगर आप इसको एग्जाम्पल के साथ देखना चाहेंगे, if you want to continue with these invitations, if you really want to know what is the formal and informal invitations are there, how can you frame it, or else what is the reply of that particular invitation. So please keep watching the video so that I can upload it and you will watch it. As well, if there is any doubt or queries, so please leave your comments so that I can improve more and more. Thank you.